Okay, so we'll go through this correlated subquery. Okay, correlated subquery. What is the correlated subquery? What is the use of correlated subquery? So sometimes what happens, suppose, okay, here I want to check just a minute, give me a moment. List the name of the movies which tickets against which tickets are booked. Okay, so here we will say list the name of the movies against which tickets are booked. Okay, so you know we have two table. One is called, let's say, select star from movie list. Then we have select star from ticket booking. Okay, so this is a movie master table where we have all the movie details, and this is another table where we have people watching movies. I mean the customers who has booked ticket to watch movie. So I just wanted to check, list the name of the movies in against which, okay, list the name of the movies against which tickets are booked. Basically Kuku movie find tickets book age, right? For which movies and all tickets are booked. If you see, I'll show you this so that you will come to know manually. I'll just see. Okay. So list the name of the movies against which tickets are booked. And if you see here, and can you tell me guys, under against which movie the tickets are booked? Name of the movies against which tickets are booked. को मूवी अगेंस्ट टिकट बुक है? Am I audible, guys? DDL. Okay. Ticket book ହେଇଛି, କୋ movie against a ticket book ହେଇଛି? DDL, against DDL there are no tickets booked. DDL movie ID is what? Movie 07. No. So can you see anybody watching movie 07 in my ticket booking table? No, sir. Okay, so you have to tell me, so name of the movies against which tickets are booked. So I have only 5 movies against which tickets are booked. 1, 2, 3, 4, 5. See, if you can see here, movie 1, movie 2, movie 3, movie 4, movie 5. So if you see here, 1, 2, 3, 4, 5 means you will see Kantara, Kabir Singh, Pushpa, KGF 2, Raksha Bandhan. Against these 5 movies, tickets are booked in the ticket booking table. Clear? Yes or no? Yeah. For 6 and 7, no tickets are booked. Okay, so how we are going to get the list of movie names? So first, see I'll tell you. So this is the query we have to write. This is called a correlated subquery. So correlated subquery, how correlated subquery runs is, yesterday I told you that in correlated subquery, inner query depends on outer query. Okay, so previously outer query in non-correlated, outer query was depending on inner query. First inner query will be executed.
whatever output you will get, that will be used in inner query, sorry, mane outer query. But here it is different. Here if you just try to execute this query alone, if you just try to execute this query, you are not going to get the result, because see, problem is select star from ticket booking. I am saying select star from ticket booking, where movie list dot movie id equals to ticket booking dot tb movie id. Okay, ticket booking dot tb movie id, it will get it, but where it will get this? Because we are selecting only one table, right? यहाँ पे एक ही टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिख रहे हैं टिकट बुकिंग, लेकिन हम लोग कंपेयर किसे कर रहे हैं? मूवी लिस्ट का मूवी आईडी के साथ टिकट बुकिंग का टीबी मूवी आईडी को कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। इसका सो यू विल नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस वन, बिकॉज एनीवेज यू आर राइटिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टिकट बुकिंग, सो टिकट बुकिंग डॉट टीवी मूवी आईडी इट विल बी एबल टू एक्सेस, बट ये एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि हम लोग इसको ना कहीं पे फ्रॉम में नहीं लिख रहे हैं। इट इज़ देयर आउटसाइड ऑफ द क्वेरी, वी आर यूजिंग फ्रॉम मूवी लिस्ट। तो आप अगर इसको खाली ये इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट करने जाओगे तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, समझ रहे हो? सो दैट मीन्स ये क्वेरी कैसे रन होगा? पहले ये रन होगा, उसके बाद जो मूवी लिस्ट का जो रेफरेंस है ना, ये इनसाइड योर इनर क्वेरी इट विल बी गेटिंग। ओके, सो ये जो मूवी लिस्ट का जो रेफरेंस है, इसको कैसे मिलेगा? जब ये एग्जीक्यूट होगा तो पहले यही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? पहले ये फ्रॉम से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है? मूवी लिस्ट वेयर एग्जिस्ट, ये कैसे चलता है आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, सो फ्रॉम मूवी लिस्ट वेयर एग्जिस्ट अभी भूल जाओ, ठीक है? अभी क्या है, सिंस दिस पार्ट एग्जीक्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम हियर, आपका ये जो अंदर वाला पार्ट को अभी एरर थ्रो नहीं करेगा। बट होगा क्या, अभी देखो आप क्या कर रहे हो, मूवी लिस्ट का मूवी आईडी, दिस इज योर मूवी लिस्ट टेबल, मूवी लिस्ट का मूवी आईडी इक्वल्स टू टिकट बुकिंग का टीवी मूवी आईडी। ओके, मूवी लिस्ट का मूवी आईडी इक्वल्स टू टिकट बुकिंग का टीवी मूवी आईडी। पूरा एक क्वेरी को आपको रन करना है, खाली इनर क्वेरी रन करोगे तो एरर थ्रो करेगा, बिकॉज ये जो मूवी लिस्ट डॉट मूवी आईडी लिख रहे हो ना, इसको इनर क्वेरी में कहीं पे आपने नहीं लिखा है। यू आर डायरेक्टली यू आर ट्राइंग टू रीड द डेटा ऑफ टिकट बुकिंग, नॉट यू हैव नॉट मेंशन टू रीड द डेटा ऑफ मूवी लिस्ट। सो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ये क्या करेगा, ये क्वेरी पूरा रन करोगे तो फिर चलेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मूवी आईडी उठाएगा, मूवी लिस्ट डॉट मूवी आईडी कौन सा है, मूवी 01, यस और नो? यहाँ से मूवी आईडी निकालेगा और यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है? यहाँ पे चेक करेगा मूवी आईडी 1 है क्या, नहीं है, हाँ है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, इसको मिला कि नहीं अभी मूवी आईडी? मिला राइट। सो जब मिलेगा, जब मूवी आईडी मिलेगा, बेसिकली क्या, आप यहाँ पे ना स्टार लिखो या कुछ भी लिखो, ठीक है? आप स्टार लिखोगे तो पूरा रो रिटर्न करेगा, यस और नो? मतलब पूरा ये रो रिटर्न करेगा। किसका स्टार कर रहे हो, टिकट बुकिंग का स्टार कर रहे हो, यस और नो? तो अगर ये मूवी, देखो थोड़ा सा हल्का सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप अगर समझोगे अच्छे से, देखो अगर ये वाला मूवी यहाँ पे मिलता है तो स्टार करेगा, तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड शो करेगा। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तुम लिख रहे हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टिकट बुकिंग वेयर मूवी लिस्ट डॉट मूवी आईडी इक्वल्स टू टिकट बुकिंग डॉट टीवी मूवी आईडी। अगर ये पर्टिकुलर मूवी आईडी यहाँ पे उसको मिलता है दूसरे टेबल में, ठीक है? बेसिकली मिल रहा है, अभी मिलता है, तो क्या करेगा, फर्स्ट रो को रिटर्न करेगा, ठीक है? से अगर फर्स्ट रो को रिटर्न करता है, ठीक है? सो वॉट एवर आउटपुट वी विल गेट फ्रॉम हियर, एग्जिस्ट का काम क्या है, एग्जिस्ट का काम क्या है, एग्जिस्ट क्या करेगा, अगर ये इनर क्वेरी कुछ भी डेटा दिखाता है, ओके, इनर क्वेरी को कुछ भी डेटा मिलता है, एग्जिस्ट बोलेगा ट्रू, समझ रहे हो? एग्जिस्ट विल रिटर्न ट्रू इफ इनर क्वेरी विल गेट सम रिजल्ट एटलीस्ट। वो पूरा रो मिले या मूवी नेम मिले, तुम यहाँ पे मूवी नेम भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? उसको कुछ भी आउटपुट मिल गया, मतलब ये कंपैरिजन से उसको एक आउटपुट मिला। सो एग्जिस्ट मतलब क्या है, एग्जिस्ट मतलब ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं।
द कंपैरिजन विच यू आर डूइंग ओवर हियर, ये खाली चेक कर रहा है कि ये जो आपने कंपैरिजन किया इसमें से कुछ आउटपुट मिला, बेसिकली वो आउटपुट है कि नहीं है, तो क्या करेगा, मूवी नेम दिखाएगा। सो मूवी नेम क्या है, अभी आएगा कांतारा। ओके, फिर ये सेकेंड रिकॉर्ड पे जाएगा। सो सेकेंड रिकॉर्ड पे जाके MB02 को कंपेयर करेगा, MB02 है कि नहीं, इसमें MB02 है कि नहीं, यस सर। है। तो फिर ये क्या करेगा, MB02 का डिटेल्स देगा। तो MB02 का डिटेल्स इसने कुछ भी रिटर्न किया तो एग्जिस्ट क्या करेगा, ट्रू करेगा, और मेन यहाँ पे जो सिलेक्ट अपना है वहाँ पे आ जाएगा कबीर सिंह। देन इट गो टू द थर्ड रिकॉर्ड, थर्ड कंपेयर करेगा, यस थर्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, दो लोग देख रहे हैं। ये क्या करेगा, थर्ड का रिकॉर्ड पूरा दिखाएगा इसको, यहाँ पे थर्ड का रिकॉर्ड मिल रहा है तो ट्रू एग्जिस्ट, मतलब थर्ड वाला मूवी आ जाएगा, पुष्पा। चलो फिर फोर्थ पे जाएगा, ठीक है, चेक करता जाएगा फोर्थ, हाँ फोर्थ है, कोई तो देख रहा है मूवी। ओके, सो फोर्थ एग्जिस्ट कर रहा है फोर्थ मूवी, यस इट इज़ एग्जिस्टिंग। देन फोर्थ मूवी जो है KGF 2 आ जाएगा। देन फिफ्थ पे जाएगा, फिफ्थ मूवी एग्जिस्ट कर रहा है, यस फिफ्थ मूवी ऑल्सो एग्जिस्टिंग, पीपल आर वॉचिंग दिस, चलो एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रू। देन फिफ्थ मूवी का नाम आ जाएगा रक्षाबंधन। ओके, देन इट विल गो टू सिक्स्थ। तो सिक्स्थ मूवी गाइस, सिक्स्थ मूवी कोई देख रहा है यहाँ पे, नो सर। सो सिक्स्थ मूवी कोई नहीं देख रहा है, मतलब यहाँ पे ये अगर सिलेक्ट स्टार करेगा तो इसको कुछ मिलेगा क्या, नहीं। नहीं मिलेगा, राइट। सो नहीं मिलेगा, मतलब एग्जिस्ट क्या करेगा, यहाँ पे अभी फॉल्स रिटर्न करेगा, एग्जिस्ट रिटर्न करेगा फॉल्स, उसको कुछ नहीं मिला। इसके अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वेरी लिखा है इसका बेसिकली आउटपुट कुछ नहीं है, ठीक है। पहले से यहाँ तक मिल रहा था, मूवी 5 तक मिल रहा था, बट यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं इसको, ठीक है। ये क्या करेगा, अभी फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये मूवी नेम लिस्टेड नहीं होगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो सेवन्थ के केस में क्या होगा, फिर सेवन्थ के केस में इस जाएगा अंदर, ठीक है, नहीं मिल रहा है, सेवन्थ भी कोई नहीं देख रहा है। सो फिर एग्जिस्ट क्या करेगा, एग्जिस्ट मतलब, एग्जिस्ट का मतलब क्या, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो मूवी का नाम दिखाओ। यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 4 मूवी का नाम दिखाया हमने। अगर नहीं कर रहा है, इट विल नॉट शो यू मूवी नाम, बेसिकली मूवी 6 और 7 का नाम नहीं आएगा। आप अगर जाके देखोगे, देखो यहाँ पे हम लोग है ना मूवी आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जीक्यूट 6 7 आ रहा है, नो सर। 6 7 मूवी नेम्स यू आर नॉट गेटिंग बिकॉज नो बडी इज़ वॉचिंग दैट मूवी, ठीक है। यहाँ पे तुम स्टार लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे तुम अगर आईडी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे अगर मूवी नेम लिखो कोई फ़र्क, बेसिकली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ TP मूवी आईडी, ओके। आउटपुट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या कर रहा है, ये अगर कुछ भी डाटा निकाल के देता है, एग्जिस्ट क्या करता है, ट्रू करता है। ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड एग्जिस्ट हो रहा है, ट्रू, नहीं हो रहा है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स करेगा तो मूवी आईडी मूवी नेम लिस्ट नहीं होगा, ट्रू करेगा तो लिस्ट होगा। सो दिस इज कॉल्ड अ कोरिलेटेड सब क्वेरी। ये इसको आप अगर ऐसे चलाओगे तो नहीं चलेगा, बिकॉज हियर यू आर ओनली सिलेक्टिंग टिकट बुकिंग मूवी, यू आर ट्राइंग टू एक्सेस टिकट बुकिंग मूवी का डेटा। सो मूवी लिस्ट का डेटा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दैट इज रीजन वाई इट इज सेइंग दैट द मल्टीपार्ट आइडेंटिफायर दिस कुड नॉट बी फाउंड, नहीं मिल रहा है उसको। इसीलिए ये क्वेरी आपको पूरा रन करना है। मतलब फ्लो कैसा होगा, यहाँ से आएगा इधर, फिर इधर ये जो आउटपुट भेजेगा, फिर आउटपुट भेजेगा, फिर आउट, ऐसा ही होगा। फिर से आप लोगों को देखो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये जा रहा है, ये पूरा रो के साथ चेक करेगा, ठीक है। 2 फिर से आके चेक करेगा, 3
फिर से आके चेक करेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आउटर क्वेरी को कंट्रोल जा रहा है इनर क्वेरी में, फिर इनर क्वेरी कंट्रोल पास कर रहा है आउटर क्वेरी को, आउटर क्वेरी को कंट्रोल जा रहा है इनर क्वेरी में, इनर क्वेरी फिर से कंट्रोल पास कर रहा है इधर, ये एग्जिस्ट के ऊपर डिपेंड करके ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है गाइस आपको? कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? आप सोचो 1000 लोग मूवी देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, 1000 पब्लिक मूवी देख रहे हैं। सपोज आई हैव गॉट 10 मूवी, ओके, 10 मूवी यहाँ पे लिस्टेड है थिएटर में, 10 मूवी चल रहा है अभी, 1000 लोग मूवी देख रहे हैं। अगर ये वाला क्वेरी तुम चलाओगे ना, ये कैसे चलेगा? 10 into 1000, यस और नो? यस। सो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। सो मल्टीपल टाइम्स ये जाके स्कैन करेगा टेबल, ये मूवी आईडी जाएगा, 1000 लोगों का देखेगा, देख रहे हैं कि नहीं, फिर सेकंड जाएगा, 1000 लोगों का देखेगा, देख रहे हैं कि नहीं, थर्ड जाएगा तो 1000 लोगों को देखेगा। सो फॉर अ सिंगल रो द क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड द नंबर ऑफ रोज यू हैव इन द सेकंड टिकट बुकिंग टेबल, ओके, गॉट इट? यस। Okay. यस। So we can go to ओके, कोई पूछेगा नहीं बट आई विल टेल यू दिस के परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, यस और नो? परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगा कि नहीं? एक क्वेरी के लिए आप लाखों पब्लिक मूवी देख रहे हैं, मतलब 1 लाख टाइम्स इट इज़ गोइंग टू चेक, हर एक रो में जाके चेक करेगा, लोग मूवी देख रहे हैं, हाँ ना करके चेक करेगा। लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, राइट? यस। ये अगर हम लिटरली, मैं लेट मी टेल यू द ट्रूथ, मुझे नहीं आया था समझ में, क्योंकि ऐसा कोई समझाया नहीं था। तो मैं 3-4 बार भी मतलब व्हेन आई वाज लर्निंग डीबी, तो मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया था। मैं खुद समझ के कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे रन करता है क्वेरी, लेकिन पहले नहीं आता है। सो एक तो कॉम्प्लेक्सिटी है, दूसरा परफॉर्मेंस का इशू है, ऑप्टिमाइजेशन, एंड इसका लिमिटेड यूज़ है। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है इंडस्ट्री में, होता है, ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं होता है, बट यू कैन डू इट, बट इसमें ना ये लोग अवॉइड करते हैं। आई थिंक दिस कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग जॉइन। तो जॉइन में हो रहा है तो फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, कोरिलेटेड सब क्वेरी इज अ कॉन्सेप्ट, वी हैव टू कवर इट एज पार्ट ऑफ आवर कोर्स। बट ये दिस कैन ईजिली बी डन इन जॉइन, यस और नो? जॉइन में आराम से निकल सकता है, चेक करो, निकालो इनर जॉइन, इतना कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों जाना है फिर? बट ये कॉन्सेप्ट है, जैसे नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी है, एक कोरिलेटेड सब क्वेरी है, ये चलता कैसा है, ऐसे ही चलता है, ठीक है? क्लियर? Yes. Okay, this is the flow. So you have to tell me now, select star from movie stars. Okay. So guys, I want to find out write a query to find the father's name of Sonam Kapoor. बताओ मुझे, how to find the father's name of Sonam Kapoor from this table. ऐसे ही रिक्वायरमेंट में आपको सब क्वेरी लगाना पड़ेगा. कैन एनीबडी टेल मी, राइट ए क्वेरी टू फाइंड फादर्स नेम ऑफ सोनम कपूर. आपके पास सोनम कपूर को मैंने दे दिया डेटा आपको, सोनम कपूर, तो आपको कैसे निकालना है? आप लॉजिक मैन्युअली बताओ, मतलब बिना क्वेरी के बताओ कैसे आप ढूंढोगे. पेरेंट आईडी. यस, सोनम कपूर का पेरेंट आईडी निकालोगे, फिर पेरेंट आईडी देखोगे 103 मतलब अनिल कपूर.
सो 103 आईडी इज रिप्रेजेंटिंग अनिल कपूर. ओके, सो क्वेरी में कैसे होगा अभी बताओ. क्वेरी में अपने को पेरेंट आईडी ये करना है कि नहीं, निकालना है कि नहीं. अपने पास सोनम कपूर का डायरेक्ट डेटा है. सो आई विल राइट सिलेक्ट पेरेंट आईडी, select from movie stars, ओके. सिलेक्ट फ्रॉम मूवी स्टार्स, यहाँ पे पेरेंट आईडी. मूवी स्टार्स, where, what, where, tell me guys, where star name equals to, Then अरे यार बोलो ना. Lewis. ठीक है, अभी क्या करेंगे बोलो. ये मेरा सब क्वेरी हो गया. ये क्या पास करे, ये इससे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा. सोनम कपूर का पेरेंट आईडी Anil. 103 मिलेगा, राइट. मैं क्या करूँगा, ऊपर लिख दूंगा Star. सिलेक्ट अगेन स्टार नेम फ्रॉम कौन सा टेबल, मूवी स्टार टेबल, वेयर, ओके, स्टार आईडी इक्वल्स टू ये. आया समझ में. Yes. ओके, पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा. ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद यू विल गेट 103. सो मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार नेम फ्रॉम मूवी स्टार्स वेयर स्टार आईडी इक्वल्स टू 103, अनिल कपूर. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स वेयर यू हैव टू गो फॉर सब क्वेरी. जॉइन इज नॉट ए वेरी गुड सोल्यूशन, क्योंकि आप ये कर सकते हो. और देर इज़ वन मोर अप्रोच. ओके, यहाँ पे और एक अप्रोच है. आपको पता है कि नहीं, सूर्या सर ने कवर किया है सेल्फ जॉइन. पता है, सेम टेबल को जॉइन करते हैं. Yeah. ओके, इसका दूसरा का अलियास बनाओ, इसका अलियास ए बनाओ, इसका अलियास बी बनाओ. ये करके भी आप कर सकते हो. फिर आप दोनों टेबल को जॉइन करो, जहाँ पे लिखो कि जहाँ पे बेसिकली ये इसके साथ मैच होता है और नेम सोनम कपूर होता है. Like A dot star ID equal to B dot parent ID. एग्जैक्टली. ओके, सो वो पॉसिबल है, वैसे करके कर सकते हो. ओके, वो पॉसिबल है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना ये आपको एकदम सोल्यूशन सिंपल मिल रहा है कि सोनम कपूर का पेरेंट का आईडी, पेरेंट का नेम निकालना है. ठीक है, सो इट इज़ सिंपल. वहाँ पे कैसा था कि हर एक स्टार का उनका पेरेंट का नेम निकालना है. तो देन यू कैन गो फॉर ए सेल्फ जॉइन. बट यहाँ पे मेरा काम आसानी से हो रहा है ना, मैं क्यों जाऊँगा फिर वो दूसरा एक टेबल बनाऊँ, उसका एलियास बनाऊँ, ये टेबल का ये पेरेंट आईडी इक्वल्स टू सेकंड टेबल का स्टार आईडी. व्हाई आई विल गेट इनटू दैट कॉम्प्लेक्सिटी. रिक्वायरमेंट अगर क्लियर है तो फिर यू कैन गो फॉर सब क्वेरी. बहुत सारा काम सब क्वेरी में ऐसे ही सब क्वेरी में हो जाता है. ओके, सपोज क्या होता है कि मेरे पास एक अकाउंट टेबल है. सो अकाउंट टेबल का स्टेटस ना बहुत सारा इसमें रहता है. लेट्स से देयर आर लाइक 5-10 टेबल्स इन बैंक. सो अकाउंट का काफ़ी सारा डिटेल्स मेंटेन होता है. अकाउंट का स्टेटस क्या है, डॉर्मेंट है कि इनऑपरेटिव है, कि एक्टिव है, इनएक्टिव है. फिर वो सब डिटेल्स निकालने के लिए ना वी यूज सब क्वेरी, एंड बाय यूजिंग सब क्वेरी वी ट्राई टू फेच द रिस्पेक्टेड डेटा फ्रॉम वेरियस टेबल्स. तो आप करते ही पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा टेबल तो वो प्राइमरी की, फॉरेन की, वो सब से कनेक्टेड रहते हैं. तो आप क्या करते हो, सब क्वेरी जॉइंट्स में निकाल सकते हो. अगर सब क्वेरी में इजीली काम हो रहा है तो देन नो नीड टू गो फॉर जॉइंट्स, सब क्वेरी से निकाल सकते हो आप. ओके, क्लियर. Yes. बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वो समझ में आ जाएगा आपको. एक टेबल है, ट्रांजैक्शन टेबल. मुझे देखना है ये अकाउंट नंबर का, लेट्स से आप सोचो ये है अकाउंट नंबर, ठीक है, ये है TRN ID. ओके, सो ये है अकाउंट नंबर, ये है TRN ID. ओके, ट्रांजैक्शन ID. अब सोचो
ये अकाउंट टेबल है. नाउ आई हैव वन मोर टेबल विच इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन टेबल. ट्रांजैक्शन टेबल. ओके, ट्रांजैक्शन टेबल में बेसिकली क्या है, ट्रांजैक्शन टेबल अकाउंट नंबर को, ट्रांजैक्शन टेबल अकाउंट नंबर को स्टोर नहीं करता है, ट्रांजैक्शन स्टोर करता है ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांस डिस्क्रिप्शन, क्यों पैसा निकाला है, कहाँ से पैसा निकाला है, देन ट्रान अमाउंट, ओके, डीआर और सीआर, डेबिट और क्रेडिट, पैसा निकाला है कि डिपॉजिट क्या है, ठीक है. देन सम अदर डिटेल्स में भी, व्हाट एल्स, लेट्स ओनली टेक दिस 4. सो मैं क्या बोलूँगा कि आज के डेट पे ये बंदे ने जो ट्रांजैक्शन किया है उसका लेटेस्ट ट्रांजैक्शन का अमाउंट मुझे बताओ. ओके, समझ रहे हो, मुझे लेटेस्ट ट्रांजैक्शन का क्या अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ है, वो एटीएम हो जाए या अपना मैनुअल ट्रांजैक्शन हो जाए, डिपॉजिट विड्रॉ हो जाए या खाली एटीएम से विड्रॉ हो जाए या ट्रांसफ़र हो जाए, जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है तुम बताओ. ठीक है, ये आप सोचो, ये तुम्हारे पास अकाउंट नंबर खाली है, सपोज 1001. ओके, 1001, 2001, 1001, 2000, 2002, okay, 1001, 2003, 1001, 2004. okay. ठीक है, अभी आप बताओ, समझ रहे हो ना, ये अकाउंट नंबर है, ये ट्रांजैक्शन आईडी है. ठीक है, ये अकाउंट टेबल में अकाउंट नंबर है, ट्रांजैक्शन आईडी है. बट मेरा एक डेडिकेटेड यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन टेबल है जहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शंस मेंटेन होता है. 2001 ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन है, विड्रॉ फ्रॉम एटीएम, ट्रांजैक्शन अमाउंट है 500, ये है क्रेडिट मतलब डेबिट बेसिकली. 2002 ट्रांजैक्शन मतलब बैंक ट्रांसफ़र अमाउंट दिस, ये डिपॉजिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है कि डेबिट हुआ है, ये सब लिखा हुआ है. तो अगर कोई बोलेगा कि ये बंदे का आज के डेट पे लेटेस्ट ट्रांजैक्शन मुझे देखना है, तो आप कैसे करोगे? लेटेस्ट ट्रांजैक्शन मतलब मैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन, यस और नो? यस. ओके, आप ऐसे करोगे, देखो आप ऐसे करोगे, लिखोगे सिलेक्ट मैक्स ऑफ ट्रान आईडी, TRN ID, ओके, मैक्स ऑफ TRN ID फ्रॉम अकाउंट वेयर ओके. मैं आपको बोल रहा हूँ कि अकाउंट नंबर आपके पास है, डायरेक्टली आपको अकाउंट नंबर मिला है. ठीक है, मिल गया मैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी. यस. ओके, ऊपर एक लिख दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शंस where, okay, where TRN ID equals to 100 या 200. नहीं लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये अपना ये है ना, सब कुछ है ना. आया समझ में? मुझे अगर इसका ये वाला ट्रांजैक्शन पे क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, ये एटीएम से क्या है, डिपॉजिट क्या है, विड्रॉ क्या है, क्या क्या है, मुझे ड्राफ्ट ट्रांजैक्शन है, चेक ट्रांजैक्शन है, वो चेक करना है और अमाउंट चेक करना है, मैं लिख दूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर ट्रांजैक्शन आईडी इक्वल्स टू, उसको मैंने आप लोगों को बोला कि लेटेस्ट ट्रांजैक्शन चाहिए. अगर मैं ये टेबल में जाके देखूंगा तो कोई लिंक नहीं है, समझ रहे हो? ये टेबल में अकाउंट नंबर आपके पास है अकाउंट नंबर. आप अगर अकाउंट नंबर को ये टेबल में सर्च करोगे, ट्रांजैक्शन टेबल में आपको नहीं मिलेगा. आपको सर्च करना है ये वाला टेबल में, ये वाला टेबल में आपको मिल गया लेटेस्ट ट्रांजैक्शन में. अगर मैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी करूंगा, लेटेस्ट ट्रांजैक्शन इज जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी लेट्स से नंबर में है, जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आईडी है वो मैं ट्रैक करूंगा. ठीक है, यस और नो? यस. ये ट्रांजैक्शन आईडी ट्रैक किया, ये ट्रांजैक्शन आईडी मुझे यहाँ पे मिलेगा. तो ये मैं सब क्वेरी में निकाला ये ट्रांजैक्शन आईडी को, इसको पास कर दिया. अगर मुझे ये बंदे का पूरा देखना है ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि सपोज आज के दिन पे इसने 10 ट्रांजैक्शन किया है, तो अगर 10 ट्रांजैक्शन का डेटा देखना है तो मैं क्या करूँगा, ट्रांजैक्शन आईडी खाली कर दूंगा. ओके,
तो मतलब यहाँ पे मुझे मिला ट्रांजैक्शन, लेकिन मैं यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखूंगा क्योंकि सब क्वेरी जब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है हम लोग को इन लिखना पड़ता है, ये सुन नो। Yes, sir. तो यहाँ पे मुझे उसका सब कुछ आ जाएगा। ये एक दो मैंने रियल टाइम सिनेरियोज हम लोग कैसे जनरली मैं जब हम लोग जब करते थे डेटाबेस वैलिडेशन, अपने को ऐसा चेक करना रहता था, हम लोग ऐसे चेक करते थे। अगर आप सोचो कि ये ना ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है ना ABCD12 रैंडमली जनरेट होता है, ठीक है, ये जंक नंबर पे जनरेट होता है, तो इस पे तो मैक्स नहीं चलेगा ना गाइज, इसमें तो मैक्स नहीं चलेगा ना, ठीक है। इसमें अगर मैक्स नहीं चलेगा डेफिनेटली यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन का डेट मेंटेन हो रहा होगा, टीयर एंड डेट, ठीक है, टीयर एंड डेट मेंटेन हो रहा होगा, ट्रांजैक्शन डेट। आप क्या करो अकाउंट नंबर ये होना चाहिए और उसका मैक्स डेट निकालो, ठीक है, मैक्स ट्रांजैक्शन डेट टाइम स्टैम्प के साथ, जो मैक्सिमम मतलब जो लेटेस्ट है वो मैक्स है, ये सुनो, डेट पे मैक्स Yes. आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और इसका मैक्स निकाल के मैक्स के अगेंस्ट जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको निकालो, समझ रहे हो। हाँ. हाँ, डेट का जो रिसेंट आपको निकालना है तो मैक्स निकालो, नहीं तो ऑर्डर बाय करके टॉप वन ले लो, ऑर्डर बाय करो डिसेंडिंग में डेट को, ओके। टॉप वन लेने के बाद टॉप वन में डेट ले लो, सो वो टॉप वन डेट के, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन आईडी का यूनिक डेट टाइम स्टैम्प रहेगा, ये सुनो। Yes, sir. मैंने अगर ऑर्डर करके ऊपर से पूरा ऑर्डर बाय करके डिसेंडिंग में अगर लेटेस्ट उठाया, टॉप वन रोल निकाला, टॉप वन ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी निकाला, मुझे ट्रांजैक्शन आईडी मिल गया, और ये ट्रांजैक्शन आईडी डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन टेबल है। तो आपको ना वो देखना पड़ेगा कि कैसे मिलता है, जो आपको आपके सामने अगर डेटा आ जाएगा तो यू कैन ऑटोमेटिकली एनालाइज इट एंड यू कैन ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट इट, आपको सामने पता ही चल जाएगा। आपका अगर डेटाबेस ये सब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो आपको अच्छे से पता है कि सब क्वेरी कैसे चलता है, जितना मैंने अभी जितना पढ़ाया, अगर वो सब अच्छे से पता है तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। 3 टेबल हो, 4 टेबल हो, 5 टेबल हो, 100 टेबल हो, आप डेटा निकाल सकते हो। लेकिन वो पहले क्या होता है कि टेबल को समझना पड़ता है कि कौन सा टेबल में क्या डेटा है, वो तो समझाएंगे, वो तो नॉर्मली आपको प्रोजेक्ट में जब आप जाओगे तो स्लोली वो इट्स लर्निंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, वो स्लोली समझते हो कि हाँ इसमें ये डेटा है, उसमें वो डेटा है, ठीक है, कैसे क्वेरी करूँ मैं, जॉइन से हो रहा है या आई हैव टू यूज़ मल्टीपल सब क्वेरीज, ठीक है। सो क्लियर? Yes, sir. Okay. Are you guys getting late to office or something, or should I continue? Continue, sir. Okay, great. So हम लोग क्या करेंगे अभी, एक और 2 चीज़ें रह गया, वो मैं कंप्लीट करके ही बताता हूँ आप लोग को। अच्छा, बैच 1 बैच 2 सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स जस्ट कवर इट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कहीं तो मैंने इसका नोट्स वगैरह लिखा है, मैं बैच सब क्वेरी, okay, no issues, let's understand first.
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच 1, बैच 2, बैच 1 में ये लोग हैं, बैच 2 में ये लोग हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, वो क्वेरीज को रन करता हूँ। सो इसका मतलब क्या है, एनी मतलब क्या है, ओके। सो सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम, ओके, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम बैच 2, ओके, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम बैच 2, यहाँ पे लिखा है लेस देन एनी। लेस देन एनी, अगर कोई एक सैलरी यहाँ पे है जो कि कोई सी बेसिकली यहाँ पे ये हो गया अपना बैच 1 हो गया, ये हो गया बैच 1 टेबल गाइज, ये हो गया बैच 1 टेबल, ये हो गया बैच 2 टेबल, ओके। ये हो गया बैच 1, बैच 1 में पायल, दीपक, कैलाश, राजू है, और बैच 2 टेबल में दीपक, भास्कर, शेखर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अगर एनी सैलरी फ्रॉम बैच 1 if it is less than, say let's say first salary, if it is less than any of the salary from batch 2, कोई एक से भी अगर कम है ये सैलरी तो उसको लिस्ट करो। मतलब पायल का सैलरी अगर ये तीनों में से कोई किसी एक से भी अगर कम होगा, लेट्स से पायल का सैलरी इज लेस देन, देखो आप सोचो, पायल का सैलरी इज लेस देन दिस सैलरी, यस और नो? यस। ओके, पायल का सैलरी इज नॉट लेस देन दिस सैलरी, राइट? पायल का सैलरी इज नॉट लेस देन दिस सैलरी, बट पायल का सैलरी एक बंदे से कम सैलरी है, राइट? सो इसीलिए ये लिस्ट में आएगा। दीपक का सैलरी चेक करेगा, सो दीपक का सैलरी इज, सी दीपक का सैलरी इज लेस देन दिस सैलरी, बट इट इज ग्रेटर देन दिस सैलरी, इट इज ग्रेटर देन दिस सैलरी। कैलाश का सैलरी इज नॉट लेस देन दिस सैलरी, इज नॉट लेस देन दिस सैलरी, इज नॉट लेस देन दिस सैलरी। अगर ये तीनों में से ये पूरा मतलब ये क्या करेगा, बेसिकली पायल का सैलरी लेके चेक करेगा। अगर किसी एक से भी पायल का सैलरी कम है तो डिस्प्ले करो, लेकिन एनी मतलब कोई एक से, एनी मतलब कोई एक से अगर सैलरी कम है तो डिस्प्ले करो। अगर देखो यहाँ पे आप सर्च करोगे, देखो अभी पायल का सैलरी आ रहा है क्योंकि पायल का सैलरी दीपक का सैलरी से कम है, राइट? दीपक का यहाँ पे जो है, यहाँ पे और एक आ रही है यार, दीपक रिपीट हो रहा है, दैट्स फाइन। दीपक का सैलरी ये वाला दीपक के सैलरी से भी कम है, राइट? तो इसलिए दीपक का सैलरी है। राजू का सैलरी भी है, लेकिन कैलाश का सैलरी क्यों नहीं है? बिकॉज कैलाश का जो सैलरी है ना, इट इज़ नॉट लेस देन दिस 3% सैलरी। यस और नो? कोई एक भी सैलरी से कम नहीं है, सबसे ऊपर ही है। गॉट इट? यस। ओके, मैं यहाँ पे एनी के बदले ऑल लिख देता हूँ, एनी के बदले ऑल लिख दूंगा। आप सोचो, एनी के बदले ऑल लिख दूंगा। सो इसका मतलब क्या है, ऑल का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे एक बंदे का सैलरी अगर हर एक बंदे का सैलरी से कम है तभी दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ऑल मतलब सबके सैलरी से कम होना चाहिए। अगर यहाँ पे तुम कोई भी सैलरी कंपेयर कर रहे हो, इट शुड बी लेस देन ऑल द रिकॉर्ड्स, ओके, ऑल द सैलरीज ओवर हियर। देखो पायल का सैलरी ये दोनों से कम है, सॉरी ये दोनों से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से कम है, ठीक है? तो पायल का डिटेल्स ऑल के केस में नहीं आएगा, समझ रहे हो? यस। पायल का सैलरी बेसिकली इफ यू कंपेयर इट इज लेस देन दिस, बट इट इज ग्रेटर देन 3,900, इट इज ग्रेटर देन 4,500। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑल सैलरी से कम होना चाहिए, राइट? ये सैलरी से कम है, बट ये दोनों से सैलरी से कम नहीं है। इसका देखो, दीपक का सैलरी देखो, ओके, यहाँ से कम है, बट ये दोनों से कम नहीं है, ज़्यादा है। कैलाश का सैलरी देखो, ओके, यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा है, और ये दोनों से भी ज़्यादा है, ठीक है? राजू का देखो, सी 1500 इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है। तो आई थिंक खाली राजू का ही दिखाएगा, समझ रहे हो? ऑल का मतलब क्या है? अगर ये पूरे लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, या पूरा जो सेकेंड टेबल का लिस्ट ऑफ सैलरी से अगर कम है तभी दिखाओ वो रिकॉर्ड। अगर मुझे समहाउ मुझे एक एनालिसिस करना है, मेरा ये आप सोचो, ये आईटी डिपार्टमेंट है, ये आईटी डिपार्टमेंट, ये एडमिन डिपार्टमेंट है, तो मुझे चेक करना है कि भाई कौन लोग ये एडमिन डिपार्टमेंट से कम सैलरी मिल रहा है। आईटी डिपार्टमेंट में कौन लोग है जो कि एडमिन डिपार्टमेंट में सबसे कम सैलरी। नॉर्मली आईटी डिपार्टमेंट का सैलरी थोड़ा ज़्यादा रहता है, राइट?
यस और नो, IT एडमिन और अकाउंट से ज़्यादा रहना चाहिए, बट मैं देखूंगा भाई कौन नीचे एकदम कम सैलरी में है, मैं वो चेक कर सकता हूँ। ओके, दैट इज़ अ यूज़ ऑफ एनी एंड ऑल। एनी मतलब पूरा ये क्या करेगा, कोई भी एक डेटा से अगर कम है तभी डिस्प्ले करेगा, अगर ऑल क्या करेगा, सबसे कम होगा तभी डिस्प्ले करेगा, और ये वैसे ही चलता है पूरा जो कमांड है आप देखोगे। चलो आप लोग मुझे बताओ, एक एक करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एनी ऑल किया मैं, अभी आप मुझे इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट क्या होगा, थर्ड वाले का आउटपुट क्या होगा, बेसिकली इसका आउटपुट क्या होगा। कोई भी किसी के साथ मैच हो रहा है क्या, इक्वल्स टू हम कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। है। मतलब मैं अगर चेक करूंगा, अगर पायल का सैलरी किसी एक के साथ भी मैच हो जाता है तो पायल का आ जाएगा। देखो पायल का किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, दीपक का एनी के साथ भी मैच नहीं हो रहा है, कैलाश का एनी के साथ मैच नहीं हो रहा है, राजू का किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर। चलो ग्रेटर देन इसका बताओ मुझे। कैलाश। Excellent. Because Kailash salary is greater than all these salaries, so you'll get Kailash. Okay. ये तो हमने करके देखा ऑलरेडी है शायद। ठीक है, राजू राजू। ओके राजू, परफेक्ट। आया सबको समझ में, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल एंड एनी। ये सिनेरियोज Yes. बहुत कम आएंगे प्रैक्टिकली, बट आपको नॉलेज अगर रहेगा तो फिर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो, देखो प्रैक्टिकल सिनेरियो हमको मतलब अपने को आप हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। एनी अगर ऐसा कुछ आया, डेफिनेटली इफ़ यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ये अगर आपने याद नहीं रहेगा ना आपको, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा तो आप फंसोगे, अरे कैसे करूँ। बट आपके सामने ये है, आप इसको इम्प्लीमेंट करके कर सकते हो। ऑल एंड एनी का ये यूज़ है। अगर ऑल एंड एनी का बुक इस वो डेफिनेशन देखेंगे, एसक्यूएल ऑल एंड एनी, W3 स्कूल पे जाओ, ओके, रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द सब क्वेरी वैल्यूज मीट द कंडीशन। सब क्वेरी में कोई भी वैल्यू अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया तभी यहाँ पे डेटा को रिटर्न करेगा। ये सर नो, यही हो रहा है कि नहीं। ओके, ऑल में क्या है, ऑल रिटर्न, सी ऑल मीन्स दैट द कंडीशन विल बी ट्रू ओनली इफ ऑपरेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज इन द रेंज। यस सर नो, पूरा सब वैल्यूज मैच करेगा तभी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये टेबल भी दिया है, आप लोग देख सकते हो टेबल को और क्वेरी को देख सकते हो। ओके, सो यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। मैं लिंक भी भेज दूंगा आप लोगों को। इसका डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहो तो देखो, वी कैन यूज़ ChatGPT टू ऑल एंड एनी इन सब क्वेरीज, give a simple definition. Sub queries query all and any keyword definition. So the all keyword is used to compare a value with all the values returned by the subquery. ये क्या करता है, all value के आपका सिंगल वैल्यू को लेके all वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा, राइट। इट चेक्स इफ
द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट इन द रिजल्ट सेट ऑफ द सब क्वेरी। मतलब इसमें जो रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को ऑल के केस में, इसमें जो रिजल्ट मिलेगा ये सैलरी क्या करेगा, सबके साथ कंपेयर करेगा। अगर तुम्हारा किसी का सैलरी ये सब लोगों से कम है, हर किसी का सैलरी से कम है, तभी रिटर्न आउटपुट रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा, राइट। एनी के केस में एनी ऑफ दी एनी के केस में एनी कीवर्ड इज यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज with any of the values returned by a subquery. It checks if specified condition is true। और ये हम लोग है ना, ये ऑलरेडी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। मैं इसको इधर लिखता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है, ये हमने देख लिया है, ये ज़रूरत नहीं है। इसका सिंगल लाइन ही समझ लो, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑल कीवर्ड इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू विथ सी। आपको अगर सपोज आप लोग सोचो ये डेफिनेशन आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बाई चांस पूछ लिया, आपको डेफिनेशन याद नहीं है, तो आप बता सकते हो ऐसे सिनेरियो करके। सपोज आपके पास सर ए टेबल है, बी टेबल है, बी टेबल में जितने सारे डेटा है, अगर आप ए टेबल का एक सैलरी कंपेयर करना चाहते हो बाय यूजिंग ऑल, सो इट विल बी फर्स्ट चेकिंग वेदर द क्राइटेरिया और कंडीशन इज मैचिंग विथ ऑल द वैल्यूज दैट इज रिटर्न इन ए सब क्वेरी, ऑल के केस में। और ये एनी के केस में एनी किसी के साथ, मतलब कोई भी एक वैल्यू से अगर कम है तभी आपको आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो एनी कीवर्ड इज यूज्ड टू कंपेयर ए वैल्यू विथ एनी ऑफ द वैल्यूज रिटर्न बाय ए सब क्वेरी। किसी एक के साथ अगर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। समझे? Yes, sir. Okay, so that's about all and any. So we are done with subqueries. Okay, then हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेशन जो रहेगा अपना फंक्शन रहेगा। सो कल हम लोग फंक्शन सीखते हैं। दो जो हमने पढ़ा था बिल्ट इन फंक्शंस है, एग्रीगेट फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारा स्ट्रिंग फंक्शंस है। विल ट्राई टू कवर दैट टुमारो। ओके, Yes. सो ये सब क्वेरीज क्लियर है, सब को रिलेटेड जो है, नॉन को रिलेटेड है। को रिलेटेड का पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप प्रॉपरली नोट कर लेना, सब यहाँ पे है, आप खाली वो देख के आपके हिसाब से वो नोट्स वगैरह कर लेना, ठीक है। Okay, sir. और कुछ चाहिए तो ये इसको पकड़ लो, चार जीपीटी को पकड़ लो, और इसको और भी डेफिनेशन चाहिए तो आप यहाँ पे मोर लिख दो, मोर डेफिनेशन, मोर सिंपलर वे, मोर इजीएस्ट वे। देखो ये क्वेरी लिख के पूरा दे रहा है आप लोगों को, मतलब ये देख रहा है कि सिलेक्ट, सी ये सैलरी चेक कर रहा है, सिलेक्ट ये मतलब ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आईडी है, जितने लोगों का सैलरी है, मतलब यहाँ से मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका सैलरी इससे ज़्यादा है, ठीक है। ये बेसिकली वही चेक कर रहा है, राइट। यस और नो? मतलब डिपार्टमेंट Yes. आईडी, हाँ, डिपार्टमेंट आईडी 101 में जितने लोग काम कर रहे हैं उनका सैलरी को आप चेक करो। आपके पास जो टेबल है, कौन वो एम्प्लॉय है जो ये डिपार्टमेंट आईडी से, मतलब ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ज़्यादा सैलरी कमा रहा है यहाँ पे बैठ के। ओके, वैसा कुछ आ सकता है रिक्वायरमेंट्स रियल टाइम में, हमें पता नहीं। ओके, सो कुछ नोट्स भी आप बनाते वक्त भी अगर आपको सिंपल डेफिनेशन चाहिए, सिंगल लाइन डेफिनेशन चाहिए, यू कैन यूज चैट जीपीटी, क्योंकि बेटर है कि आप मतलब ऐसे ही गूगल करने से बेटर है कि चैट जीपीटी यूज़ करें, यू विल गेट अ बेटर डेफिनेशन। सपोज आपको ऐसा रट्टा मारना है डेफिनेशन, देन टेक इट फ्रॉम दी चैट जीपीटी। इवन लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मुझे कॉन्सेप्ट जितना क्लियर है ना, मुझे भी ऑल ऑफ सडन वो डेफिनेशन क्रैक नहीं करता है दिमाग में, ऑल ऑफ सडन किसी को बताना है ना, वो बुकिश डेफिनेशन याद ही नहीं रहता है। तो रादर मैं जब इंटरव्यू देता था, ओके, अभी तो रिसेंटली मैं नहीं दे रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बट मैं जब इंटरव्यू दे रहा था रेगुलरली, वो आई यूज टू गिव अ डेफिनेशन, आई यूज टू टेल देम दिस सिनेरियो, ऐसा करके बताता। सपोज सर आपके पास ए टेबल है, यू हैव गॉट बी टेबल, ए टेबल हैज़ दिस डाटा, बी टेबल हैज़ दिस डाटा, दिस इज हाउ इट विल वर्क, ऐसे बताना पड़ेगा, वो समझ जाते हैं। उनको ना बुकिश डेफिनेशन नहीं चाहिए, उनको एक्चुअली बंदे को आता है कि नहीं, वो अप्रोच चाहिए, ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, ऐसे चाहिए, ठीक है। इट डजेंट मीन दैट यू कैन ओनली वो रट्टा मारा डेफिनेशन याद रखो, वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये तो कभी कभार बोलते हैं कि जॉइंट्स बोलते हैं कि आप सामने करके दिखाओ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये कोई याद तो कोई भी रख सकता है रट्टा मार के, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, लेट्स कनेक्ट टुमारो देन, लेट्स कंटिन्यू विद द सबको अपना फंक्शन।